جی تو یہ جو کل پرسوں چاند گرہن لگنے والا ہے اس پر آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہی حمل ہیں، اس واسطے میرے منہ سے آپ کے بارے میں یہ بات نکل گئی ہے. جتنے بھی عملی افراد ہیں وہ چاند گرہن لگنے کی وجہ سے ان پر ان کے جذبات پر احساس محرومی کا احساس ہوگا ان کو، جسے ہم فرسٹریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا. اور دوسرا ان کے رشتہ داروں کے کوئی معاملات سامنے آ رہے ہیں گرہن کے وقت، ٹھیک ہوا، قریبی رشتہ داروں کے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ان دنوں آپ بڑا ہر چیز کو ہلکے پھلکے انداز میں لے رہے ہیں. عملی افراد تو کوئی اچھا موقع آئے گا اس کو یہ ضائع کر دیں گے. دے شوڈ ریمین فرم سیریس، دے شوڈ سی ہیئر از اپرچونٹی گریپ اٹ. لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے اس موڈ میں رہیں گے کہ سب ٹھیک ہے. اچھا، جس چیز سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا اب آپ سوچئے کہ مجھے کس چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو آپ چھوڑ دیں. اب وہ آگے چل کر مزید آپ کو پریشان کرے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اور یہ جو ہفتے کا آخر ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور ایسے ہونا چاہیے. یعنی کہ ابھی ہم لوگ سوچنے سمجھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ہفتے کو زیادہ سوچیں، ایک دو دن نہ سوچیں گے، ہفتہ کے آخر میں سوچیں. اچھا زیادہ سوچیں، ابھی سکون رکھیں. یو آر ٹیکنگ اٹ پرسنلی، کیونکہ آپ کا برے آپ اسے ذاتی طور پر لیں. ٹھیک ہے، ذاتی طور پر لیں، لیکن عملی افراد کو بھی یہ بات میں ساتھ ساتھ کہتے جا رہا ہوں کہ ہفتہ کے آخری دن ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت اچھی ہوں گی اور اس کے مطابق یہ فیصلہ کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس کے اب علاوہ آتے ہیں ہم سور کی طرف. جی بالکل بالکل. یہ سوری حضرات جو آج کل ضدی بنے پڑے ہیں، بہت زیادہ ضد کر رہے ہیں. اور اس واسطے میں زیادہ اسی چیز پر زور دے رہا ہوں کہ یہ ضد نہ کریں، کچھ لچک پیدا کریں. ضد اپنی جگہ، لیکن اب ان کو جو انہوں نے ضد دکھانی تھی، ضد کا مظاہرہ کرنا تھا، ضد کا جو انہوں نے اپنا وہ اثر اس کا تھا وہ ہو چکا ہے. اب یہ لچک پیدا کریں، اور لچک پیدا کر کے اپنے آپ کو بیلنس کریں. اور ان کے ساتھ ایک اور بڑا عجیب سی بات ہو رہی ہے جو کہ نوجوان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. رومانوی طور پر یہ وقت پر فون نہیں سن سکیں گے، اور جب وقت پر فون نہیں سنیں گے تو رومانوی ملاقات جو ہے اس سے یہ ظاہر ہے محروم ہو جائیں گے، جس طرح کو بڑی گھبراہٹ، بڑی بے چینی اور بڑا وہ ذہن میں آئے گا. تو یہ وقتی طور پر یہ آ رہا ہے. آپ ایسا کریں، الرٹ رہیں، اور آپ کے جو رومانوی پارٹنر ہے وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ اس کی بات سنیں. ٹھیک ہو گیا. اور ورنہ یہ ہے کہ آپ کے لیے وقتی طور پر پریشانی بن جائے گی. اور یہ جو چاند گرہن لگ رہا ہے، آپ اپنے مالی معاملات کے بارے میں سوچیں کہ ہماری معاملات کیا ہیں، ان کو کیسے نارمل کیا جائے. بلکہ یہ بھی ہے کہ گرہن کے وقت آپ یہ بھی آپ کو خیال آئے گا کہ میں کوئی آمدنی کا متبادل ذریعہ سوچ لوں. اگر اس طرح سے آمدنی نہیں آ رہی، کوئی اور ذریعہ سوچا جائے. اور یہ آپ ضرور سوچیں، شاید آپ کے ذہن میں جو خیال آئے وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہو. ٹھیک ہو گیا. جو بیلنس کی آپ نے بات کی ہے کہ ان کو بیلنس بہت ضرورت ہے، ان کو اس وقت بیلنس رکھنے کی، لچک رکھنے کی. رکھ پائیں، توڑ پائیں گے اپنی بیلنس جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے اور ضد ختم کرنے کی ضرورت ہے، کر پائیں گے یہ؟ دے شوڈ ٹرائی. میں تو یہی کہوں گا ٹرائی. ان کے لیے جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے جس پر مجھے اصل زور دینا چاہیے کہ یہ کسی سے ادھار لینے والے ہیں سود پر. تو میں سوری حضرات کو یہ واضح ٹھیک ہو گیا ایز اے اسٹوری یار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی صورت سود پر پیسہ نہ لیں، ورنہ پھنس جائیں گے. پیسہ نہ لیں. اور بلکہ میں تو یہ ان سے کہوں گا کہ ان کے دوست احباب ان کی مدد کرتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی تھوڑے بہت پیسے لے لیں، لیکن سود کی طرف نہ جائیں. اب میں آتا ہوں جوزہ کی طرف. جوزہ جو ہیں یہ بڑے متحرک لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ میل ملاپ کرتے رہتے ہیں. ان دنوں عجیب سی ان پر سستی چھائی ہوئی ہے، غفلت چھائی ہوئی ہے، کوئی کام کرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا، ہر وقت جناب اپنا چرپائی پر پڑے ہیں. تو میری طرف سے جناب یہ عرض ہے جوزی حضرات کو کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں، سرگرم ہو جائیں اور لوگوں سے رابطہ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ رابطہ کریں گے تو رابطہ کرنے کے دوران کوئی ایسے آپ کو کوئی آئیڈیا ملے گا، کوئی ایسی کوئی دوست سے بات ہوگی جس سے آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ جو آپ کی سوئی ایک جگہ آ کر رک گئی ہے، اس سوئی کو ہلائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں، اور اس طرح آپ محسوس کریں گے کہ میرے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور دوسرا ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ دوسروں کے جو ہیں ان کے معاملات کو بھی ان کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے یا عجیب سا مسئلہ لگتا ہے، آئرانک جیسے کہتے ہیں، وہ یوں ہے کہ جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح پریشان ہیں. وہ بھی سست ہے. نہیں، وہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں جس کی یہ مدد چاہتے ہیں. لیکن یہ اس بات کو نہ سوچیں جوزی حضرات، یہ ان سے مدد لے لیں وقتی طور پر. بعد میں خود بھی تو یہ مدد کرنے والے لوگ ہیں، بعد ہم یہ بھی مدد کر سکتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ متحرک ہو جائیں. اور یہ جو آپ کا رویہ بنا پڑا ہے کہ آپ کی سوئی ایک جگہ آ کر رک گئی ہے، یہ بہت غلط ہے. جرمنائی لوگ ایسے تو نہیں ہوتے، دے آر ویری موونگ، ویری ایکٹیو، اور ان کا ذہن دل دماغ ہر وقت جو ہے حرکت میں رہتا ہے. آپ اپنے دل دماغ کو حرکت میں لائیں
और अपने रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ सोचें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और दोस्तों के ज़रिए मदद करे। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनका नामे खाने के घर में पड़ेगा, और नामे खाने में इस तरह इनका आने में ये होगा कि ये वक्ती तौर पर इनका उलझाव आ जाएगा, वक्ती तौर पर उलझे रहेंगे, और उस उलझन की वजह से मुमकिन है ये असरात हों कि ये जो लोग आजकल इनका किसी काम करने को जी नहीं चाह रहा है, और थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी इस्तेमाल करें, ग्रहण गुजर जाएगा, ग्रहण को बर्दाश्त करें, और बाद में इंशाल्लाह हालात ठीक होने वाले हैं। चलिए बाजी कैंसरियन पे आ जाएं। सरतान, तो सरतान वालों का तो पिछले 1-2 हफ्ते ठीक नहीं थे, बड़े टेंस थे, जज्बाती हो रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे। अब ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है यहाँ पर, इनकी ज़िंदगी में सोशल लाइफ इनकी बहुत एक्टिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा दोस्त आ रहे हैं इनके पास, और ये जो इनके लिए एक और बड़ा मसला बना हुआ है, इनका रोमानवी हालात इतने अच्छे हैं कि वो जो इनका पार्टनर है वो इनसे मिलना चाहता है, लेकिन ये कुछ ऐसे मामलात में फंसे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं, इन पास वक्त ही नहीं है कि अपने पार्टनर को मिल सकें। ये एक अजीब उलझन है जिसमें ये गिरफ्तार हैं कि पार्टनर चाहता है कि मुझे मिलें और ये मिलने के फिलहाल काबिल नहीं है। इस उलझन का नाम ये हफ्ता है इनके लिए। इनको चाहिए कि किसी जो भी हो सके कोई वक्त निकाल कर अपने महबूब के पास जाएं, और चांद ग्रहण जो है इनके लिए एक ऐसी बात ला रहा है जो कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि ये ऐसा कोई वक्त आ रहा है इनके लिए, ग्रहण का वक्त, कि जो भी ये दुआ करेंगे वो कबूल हो जाएगी। अच्छा, तो इनको चाहिए कि ग्रहण जब लगे 29-31 को ग्रहण के असरात होंगे, ये इबादत करें। अच्छा, इबादत करें और अल्लाह से वो चीज़ मांगे जायज़, ताकि वो इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए और अल्लाह भी खुश हो कि मैंने एक जायज़ ख्वाहिश पूरी हो गई इनकी, और दिसंबर को मजीद बोझ इनका जो है उतर जाएगा। अच्छा, और इंशाल्लाह इनके कारोबारी और सेहत के हालात ठीक है? कारोबार और सेहत के हालात ठीक है, मोर और लेस, कोई ऐसी बात नहीं है, और कैरियर को जो है ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जिस वजह से महबूब से भी नहीं मिल सकेंगे। आपको सबसे बड़ा गम ये है कि ये मिल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मैंने जो प्लानेट पढ़े हैं, जो प्लानेट लगे पड़े हैं, उनके मुताबिक बात करनी पड़ती है कि इनके रोमानवी हालात हैं। सही है, आप सीरियस ना लें, लेकिन ये इनकी मसरूफियत की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, और वो कारोबारी मसरूफियत है। वैसे कोई मसरूफियत होगी तो इनको चाहिए कि अगर ये रोमांस में दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो दे शुड टेक टाइम। अच्छा, ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम असद पे। लियो, इनकी जो बड़ी तब्दीली आ रही है वो रोजगार की है। रोजगार की तब्दीली आ रही है, ये परेशान ना हो इससे, अपनी कोशिश जारी रखें और आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, कारोबार इनको मिलेगा। और इनको अपनी जो तख्लीकी सूरत हाल है, अल्लाह ताला ने इनका ज़हन आजकल बड़ा रवां ज़हन इनका मुतरक है, और ज़हन जो है इनका तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे यह है कि इनको शोहरत भी मिलेगी और इससे इनके नए तलकात भी लोगों से बन सकते हैं। बहरहाल ये अपनी शोहरत को सोचें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि ये जो जितनी भी अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं, इन सलाहियतों को आप लोग जो हैं इनके लिए कोई तंजीम होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। इनको सलाहियतों का इस्तेमाल करने का कुछ सोचें। आप बग़ैर मुनज़्ज़म, बग़ैर तंजीम के अपनी तख्लीकी सलाहियतों का जब मूड आया कुछ ना कुछ आप तख्लीकी सलाहियतों की वजह से लिख पढ़ लेते हैं। ऐसा ना करें, तंजीम बनाएं, वाज़ेह मकसद सामने रखें, वाज़ेह मकसद सामने रखें। जब आप मकसद सामने रखेंगे तो आप हर वक्त आपको अपनी तख्लीकी से इस्तेमाल करने का जी चाहेगा और आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। अच्छा, अब तो ऐसा लगता है जैसे आप अंधेरे में हैं, बस अंधेरे में जैसे कोई आदमी घूमता है, अंधेरे में निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरे में निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल करते हैं कोशिश इनकी आजकल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तंजीम करें, अपने हालात की मुनज़्ज़म करें और सामने लाएं अपना मकसद को रखें सामने, उसको सामने रख, हर वक्त सोचें कि ये मेरा मकसद है, मैंने इस तरफ जाना है, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा और ये आगे बढ़ेंगे। और ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है? ग्रहण का इनके लिए जो इम्पैक्ट है वो मिला जुला है। कोई जो जज्बाती इनकी ज़िंदगी है ना, उसमें कोई उतार चढ़ाव समझ लीजिए, मिला जुला है। जज्बाती ज़िंदगी किसकी नहीं होती, हर आदमी जो थोड़ा बहुत जज्बाती है, हर आदमी थोड़ा बहुत जज्बाती लगाव में है। तो वो जो है इनको ज़रा थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ग्रहण की वजह से। ठीक हो गया। और आप कुछ अपने बचपने से जान छुड़ाएं। असली हजरात जो है ना, कोई बचपना भी आया हुआ है प्लानेट की वजह से, इस बचपने से बाहर निकलें, बाहर निकल के अपने हालात को पुख्ता दिमागी से, पुख्ता ख्याली से कोई प्रोग्राम बनाएं और उसके मुताबिक तंजीम बनाकर मुनज़्ज़म करके चलें, और फिर देखें कितनी अल्लाह ताला इनको तरक्की देता है। ठीक हो गया। और ये जो जॉब के सिलसिले में वक्ती परेशानी आ रही है, इसकी परवाह न करें, ये बाद में फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। आपकी सिर्फ कोशिश की जरूरत है, ऑर्गेनाइज हो आप लोग बस। और ये जो ग्रहण है इसकी वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तकबिल का सोचने लगते रहेंगे कि कैसा होगा, ये होगा, फिर वो होगा। ऐसा ना करें, स्टे काम, स्टे फोकस, मकसद को सामने रखकर उसके पीछे लग जाए। अच्छा, अब अगले सितारे पे आते हैं, विर्गो जी। विर्गो, हाँ जी, इनकी जो
मुलाकात है उसके लिए ये कोई ऐसी सूरत हाल बन चुकी है। अब आप फिर चूँकि आप खातून मेरे साथ बैठी हैं, मुमकिन आप ये सोचें कि बार बार ये हर बुरुज के साथ ये क्यों कहना शुरू किया। आप इधर लिखा पड़ा है तो मुझे बोलना पड़ता है। वो यूँ है कि ये रूमानी मामलात में इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल बनी पड़ी है। ये बाजार कोशिश करने के बावजूद मिल पा नहीं रहे। एक अजीब रुकावट आ गई, एक अजीब मुश्किल है, उसके लिए ये बहुत ही टेंशन में। कोशिश करें कोई रास्ता निकालें। और नंबर 2 ये है कि जॉब में काम में तब्दीली आ रही है, रोजगार में तब्दीली आ रही है, जिससे इन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ठीक हो गया। इसका बुरा असर कबूल न करें। इनके चूंकि ज़हन बहुत तेज़ होता है सुमला हज़रात का, ये कोशिश करके अपने कारोबार को संभालें। या कारोबार में तब्दीली नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। और पिछले 3, 4, 5 हफ्तों से आप दबाव का शिकार हैं, और उस दबाव से भी आप निकलने का एक ही तरीका है कि कोई मशगला ऐसा बनाए जिससे आप इधर उधर अपना वक्त जो है दिल का बहलावा बन जाए। उसके बाद आपसे ये जो लोग वायदा कर रहे हैं आजकल, ये वायदे पर पूरा नहीं होता रहे, जिसकी वजह से आपको अक्सर ये भी सोच रहती है, ख्याल आता है कि ये लोग क्यों इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए। नंबर 1, आप अपनी कोशिश तेज़ कर दीजिए। वक्ती तौर पर कारोबार में रुकावट आ रही है, इसकी मुतलक परवाह न कीजिए, हिम्मत से काम लें, अपनी सोच से काम लें, कारोबारी जो सलीत यहाँ पर मौजूद है उससे काम लें। इंशाल्लाह आगे चलकर हालात बेहतर आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो मैं नहीं कह सका और वो पहले कहनी चाहिए थी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, आप लोग तो लिबरा के लिए ज़रूरी बात तो यही है कि जो कारोबार से या जिस बात से उनको फ़ायदा नहीं हो रहे उनको छोड़ दें। और एक और बात जो ज़रूरी है कि कई लोगों ने इनसे वादे किए हुए हैं जिनसे इन्हें उधार लेना है। अच्छा, उनके वादों पर एतबार न करें, वो उधार अभी वापस नहीं करेंगे। ये जरा सोच समझ कर। खान साहब ने किससे उधार लेना है? उनकी बातों में आपने अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ आपका फलसफा है, कोई मंतक है, कोई तरीका है कि मेरी ज़िंदगी इस तरह अच्छी होनी चाहिए। दैट्स गुड। लेकिन सवाल ये आप सोचते इस तरह हैं और फिर जो है अमल नहीं करते उस पर। तो ज़रूर सोचें, प्लान करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने अकायद पर अमल करें। लेकिन सवाल ये है कि उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप अमल नहीं कर रहे, इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अपना ये जो ग्रहण लग रहा है, ये जो करीबी लोग हैं इनसे उनसे थोड़ा बहुत इनको मुहतात रहना होगा। और दूसरा ये है कि किसी आप में कोई आप चीज़ों को भूल जाते हैं या भूल रहे हैं इस हफ्ते, आपने किसी से मीटिंग का वादा किया होगा, आप उसको ज़हन में रखें। वो मीटिंग का वक्त आ जाएगा और आप सोए पड़े होंगे। चलिए बादाम खाएं उस मीटिंग के लिए। खैर, अगले सितारे पर आते हैं हम। स्कॉर्पियन हम स्कॉर्पियो तरफ आते हैं। आज स्कॉर्पियन की तरफ ये लोग जो हैं ये बड़े तेज होते हैं। इनको ऐसे कोई इनका माइंड पावर है कि अगले आदमी के ख्यालात को ये फ़ौरन समझ जाते हैं कि आदमी क्या सोच रहा है और उसके जज्बात क्या है और उसके ख्यालात क्या है। इसका इनको बड़ा फ़ायदा होता है, ये आदमी को फ़ौरन समझ जाते हैं। और इनको मुलाजमत का कोई नया मौका मिल रहा है या प्रमोशन आ रहा है या प्रमोशन हो चुका है, मज़ीद हालात मुलाजमत के अच्छे हो रहे हैं। और लेकिन यह है कि कुछ लोग जो हैं वो आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं किसी मसला को हल करने के लिए। आप बज़ाहिर यही कह रहे हैं कि ठीक है मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन प्लानर ये कह रहे हैं कि आप इस मूड में हैं ही नहीं, आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो आप उनसे साफ कह दें कि मैं अभी मुज़ाकरात नहीं करूँगा, बाद में किसी वक्त मिल बैठेंगे। और इस तरह उनको अपने कॉन्फिडेंस में रखें। और दूसरा यह है कि आप अपने लिए एक और घर बनाना चाहते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसके साथ साथ आप एक लंबा सफ़र भी सोच रहे हैं, लंबा सफ़र नज़र आता है मुझे, आप ज़रूर जाएँ, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपका कोई बड़ा मंसूबा है उसको भी आप कामयाब हो रहे हैं, उसको इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक हो गया। और हालांकि ये जो अकरब हज़रात होते हैं ये होते बड़े सख्त हैं, इनका फ़नकाराना सरीतों से क्या तल्लुक़। लेकिन इस हफ्ते अकरबी हज़रात भी आर्ट जो फ़नकाराना सलीत होते हैं उसको बड़ा पेंटिंग को, मुसव्वरी को, म्यूज़िक को, ये बड़ी माशाल्लाह दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। और अकरब हज़रात जो हैं ये इनका आम मिजाज ऐसा नहीं होता। मैं कौस की तरफ आता हूँ। बिल्कुल, आज सेजिटेरियस की तरफ। हाँ जी, देखिए जदी हज़रात आपको 2 बातें कहनी पड़ेंगी कौसी हज़रात को। नंबर 1, आप बहुत कोई कीमती चीज़ खरीदना चाहते हैं, वो अभी न खरीदें। जब पैसे आएंगे, जब माली सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी और उस वक्त इसके पीछे पड़े, आप अपनी खर्चीली आदत से जान छुड़ाएं। ठीक। आपका जो रोमानी मामलात हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वो बहुत ही अच्छे हैं, हालात साजगार हैं। लेकिन ये है कि आपके रोमानवी जो पार्टनर उसको कोई डिमांड है या आपकी कोई डिमांड है, वो डिमांड आप एक दूसरे को पूरी नहीं कर रहे। और अगर ये ऐसी सूरत आ रही तो ये रोमांस जो है ये भाप की शक्ल में उड़ता नजर आता है। तो आपको एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। सही हो गया, सही हो गया। ग्रहण का कोई असर?
ग्रहण का यही असर है जो मैं बातें बता रहा हूँ। बस ठीक हो गया, सही है। ख्याल करें आप। अगले सितारे पे आ जाएं, और कैप्रिकॉर्न। इनको अपनी जो जिंदगी है, मैरिड लाइफ, उसका जरा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं। आजवाज जिंदगी का इनको ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। आगे हम आते हैं जद्दी की तरफ। बिल्कुल, फिर हंस रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो रोमानी मामलात में ये अपनी जगह इनके भी आए हुए हैं, लेकिन रुकावट भी है। अच्छा, सही। इनमें एक अजीब जो रुकावट है वो एक अजीब दिलचस्पी बनी हुई है। जद्दी हजरात समझते हैं कि हमें कोई पसंद कर रहा है, अच्छा, फिर ये जद्दी हजरात समझते हैं कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह ख्यालात की उलझन आई हुई है, इस उलझन से बचें। एक मैं बात वाज़ेह आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी, कोई खातून आप में दिलचस्पी ले रही है, या अगर कोई खातून उसमें कोई जद्दी खातून उसमें कोई दिलचस्पी ले रहा है, तो आप फ़ौरन उसे कह दीजिए कि मैं दिलचस्पी नहीं है मुझे, और मैं इस उलझन में नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना नहीं चाहती। आप अपनी तरफ से रोमांस से जान छुड़ाएं, क्योंकि आपके सितारे ठीक नहीं है, आप बाद में फंस जाएंगे। ठीक हो गया। और ये बात आपके लिए बड़ी खराब साबित होगी। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ दल वज़रात की तरफ। जी, एक्वेरियस। हाँ जी, दल वज़रात पिछले 3-4 हफ्तों से डिप्रेस हैं, और काफ़ी हद तक डिप्रेस हैं। बहरहाल ये जो डिप्रेशन है ये अपनी जगह वक्त गुजरता रहता है, और दलवी हजरात पर इस डिप्रेशन के अलावा एक और बात भी छाई पड़ी है कि मैं इतनी जद्दी हजरात समझते हैं अपने आप को कि हम इतनी ज़हीन है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी हमारी मेहनत जो है उसका लोगों ने असर कबूल किया हुआ है। ये सब कुछ समझ के बाद वो समझे कि हमारी माली पोजीशन ठीक नहीं है। जितने दलवी हजरात हैं आजकल वे सोच में पड़े हुए हैं कि हमें हमारी इस्तेदाद के मुताबिक, ज़ानत के मुताबिक, मेहनत के मुताबिक, कारकर्दगी के मुताबिक हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये ख्यालात जो हैं इस पर वो अगर ये समझते हैं तो ये इस सिलसिले में कोई कदम उठाएं, और सही तरह कदम उठाएं, और अपने इन ख्यालात को जान छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है कि दे शुड एक्ट अपॉन इट, अमल करें और अपना जो हक है वो लें। अच्छा, इनकी सेहत के बारे में बताएं, सेहत के क्या इनके हालात हैं? हाँ, वो सेहत के मामले में सख्त एहतियात की ज़रूरत है, और इसी पर आप अमल पर आ रहे हैं अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में। और ये एक और इनकी जिस्मानी जो सूरत हाल है सितारों के मुताबिक वो ये है, ये अपने पाँव की मालिश चाहते हैं। आप मुझे बड़ी अजीब गरीब कि ये पाँव पर कैसे चला गया, आप इस तरह देख रही हैं, लेकिन ये इधर प्लेनेट कह रहे हैं कि इनका जो पाँव है टुकना है, ये पाँव की मालिश चाहते हैं। अब यहाँ लोग हाथ की मालिश नहीं करते, पाँव की मालिश कौन करेगा? थोड़े पैसे खर्चने चाहिए फिर इनको। तो इनको आजकल यही है कि इनके पाँव की अगर मालिश की जाए तो इससे भी इनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। चलिए, ठीक हो गया। अब आखिरी आता हूँ, और उसके बाद अपना भूत ही रह गया। जी 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 जी, वही बोला मैंने भी। बताएं। इन दिनों में ये लोग जो है ना, ये अकरबी हजरात की तरह इनका वजदान भी बहुत तेज़ होता है। ये भी फ़ौरन भाग जाते हैं कि फला आदमी क्या सोच रहा है, इनमें ये सलाहियत है। लेकिन इन दिनों जो इनको वजदानी तौर पर जो बातें सूझ रही हैं उस पर इनको एतबार नहीं करना चाहिए इन दिनों खास तौर पर, वरना ये धोखा खा जाएंगे। कभी कभी वजदान भी ठीक नहीं होता, तो इन दिनों अपने वजदान पर न जाएं, वक्ती तौर पर चुप कर जाएं। और तालीमी एजुकेशन जो है, तालीमी जो है तालिब इल्म होती है, वो बड़ी मुश्किल में फंसे पड़े हैं। इम्तिहान की तैयारी बहुत ज़रूरी है, और इनको यकसुई भी हासिल नहीं है, डिस्टर्ब है। तैयारी इतनी ज़रूरी है कि सुबह शाम यही बात इनके ज़हन पर छाई हुई है, लेकिन डिस्टर्बेंस भी इतनी ज़्यादा है कि ये काम कर ही नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर सकते। और चांद ग्रहण जो है इसको से इनके घर में कोई तब्दीली आ रही है, या ये जहन में बात सवार है कि हम फौरी तौर पर 2-3 दिन लगा के अपने घर को डेकोरेट करें, या कोई तब्दीली आ रही है। आप इन दिनों कोई आपका दोस्त है जो बातें करते करते, उससे मुलाकात करते करते आपको कोई ऐसी सोच देगा, आपका कोई ऐसा आइडिया देगा, आपको ऐसी बात बताएगा जिससे कि आपके कई मामलात बाद में संभल सकते हैं, आप उनको हल कर सकते हैं और कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। सूरत हाल जो प्लानट की थी वो मैंने अर्ज कर दी है। अच्छा, ग्रहण का इम्पैक्ट बताएं, ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है, क्या करें? जो ग्रहण लग रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन पे? ग्रहण का? हाँ, ये 31 को लगेगा ना। हाँ, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा इनके सितारे पे? मैंने हर एक को बता दिया है ना, कोई पर्टिकुलर कोई चीज तो नहीं है। मैंने बताया ना कि घर के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इनके जो घर का बुरुज है वहाँ ग्रहण लग रहा है। ठीक हो गया। हाँ जी, सही हो गया। तो इसी तरह जो एक्वेरियन है इनके मोहब्बत के खाने में लग रहा है। ठीक हो गया। ग्रहण इनके मोहब्बत खाने में लगा, ये मोहब्बत खाने में कुछ न कुछ करेगा। ठीक हो गया, बेहतर ही करेगा, आई एम श्योर। अब देखिए क्या करता है ये ग्रहण है।